Good morning, dear student. In my last session, I have told you to write the notes of chapter 2nd of geography. I hope you all have written that, you all have done that homework. So today I am going to begin with chapter 2nd of civics, the Constitution of India. In last chapter, we have studied about the role of constitution in a society. And in this chapter, we are going to learn about the journey of making of Constitution of India and also its aims and objectives. Making of Constitution of India. India attained independence on 15th August 1947. With the freedom emerged a need of set of written laws to govern the country. Thus the leader of that time collaborated to set up the Constitution Assembly to frame the Constitution of India. जब हमारे देश को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947 को, तभी हमारे देश को ज़रूरत पड़ी कि रिटर्न लॉस एक ऐसा सेट बना जाए रिटर्न लॉस का जिससे हमारे कंट्री को गवर्न किया जाए, क्योंकि तब तक उसके पहले ब्रिटिशर्स के रूल्स थे, ब्रिटिशर्स के लॉस थे जिससे हमारी पूरी कंट्री गवर्न होती थी. नाउ वी आर फ्री, सो वी शुड हैव अवर सेट ऑफ constitution. For that, our leader came together to set up, to frame up the Constitution of India. हमारे देश के नेता आगे आए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. Constituent Assembly. Constituent Assembly consists of some great political leader of that time, such as Dr. Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Azad, Sarojini Naidu, Frank Anthony, and Vijay Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. ये फॉर्म करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए हमारे बहुत सारे लीडर्स जैसे कि राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू जी है, अम्बेडकर जी है, ये सब साथ में आए ताकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. इस असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. In order to prepare the first draft of Constitution of India, the Constituent Assembly appointed the drafting committee, with Dr. B.R. Ambedkar as the chairman. The drafting committee submitted numerous drafts of provisions of Constitution of India. Thereafter, the Assembly discussed and deliberated those provisions to give a final shape to the Constitution of India. अभी इसको बनाने के लिए प्रेसिडेंट तो थे राजेंद्र प्रसाद, पर वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स भी बनाए गए थे, चुने गए थे. डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जो थे उनको चेयरमैन बनाया गया. ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो सब ड्राफ्ट करती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए. उसके बाद असेंबली ने डिस्कस किया और प्रोविजंस को फाइनल शेप, मतलब उसको फाइनल लुक, फाइनल जो डिसीजन था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बना इन सब की हेल्प से. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950. पूरा हो गया था वो 26 नवंबर को, पर इफेक्ट से मतलब लागू कब से हुआ, 26 January 1950, which we celebrate as our Republic Day. Aims and objectives of the Constitution of India. Aims and objectives of Constitution of India are enshrined in its introductory note called Preamble. The Preamble declares India to be Soviet, socialist, secular and democratic republic. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंट्रोडक्टरी नोट रखा जो यहाँ पे, जिसको प्रीएम्बल कहते हैं, जिसकी पिक्चर यहाँ पे दी गई है. सी इसका स्टार्टिंग पेज, जिसमें क्या लिखा था, हियर इट इज़ गिवन. अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर किया था सोवियत, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. हर एक वर्ड का मतलब क्या है,
So further it aimed to secure justice socially, economic and politically. उसका मेन एम क्या था कि जस्टिस, न्याय देना, सोशली भी, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली. It also aims on liberty, equality and fraternity to the citizen of India. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस ऑल वर्ड्स आर न्यू फॉर यू बट यहाँ अगर मैं जब डिटेल में आपको बताऊंगी इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू व्हाट ईच एंड एवरी वर्ड मीन्स एंड व्हाट अवर प्रीएम्बल includes. So we will begin with sovereignty of India refers to its freedom from any type of internal and external control. It also means that country is free to frame and adapt its own policy. अभी कंट्री सोवियर है उसका मतलब क्या है कि कंट्री पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, मतलब किसी देश का या किसी पर्सन का कंट्रोल नहीं है, इंटरनली और एक्सटर्नली. ठीक है, जब कंट्री चाहे तो वो अपने लिए खुद एक नई पॉलिसीज़ फ्रेम करेगा और वही वो एडेप्ट करेगा. जैसे हमने देखा कि कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सारे लॉस, सारे हाउ कंट्री इज़ रूल्ड, वो सब उन्होंने फ्रेम अप किया. ठीक है, इन शॉर्ट सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि कंट्री फ्री है अपनी खुद की पॉलिसीज़ बनाने के लिए और उसको एडेप्ट करने के लिए, फॉलो करने के लिए. नाउ वी आर ऑन पॉइंट सोशलिस्ट. Being socialist, India aims at reducing the gap between rich and poor. It strives to ensure fair distribution of wealth by providing equal opportunities of development to all its citizens and providing security to the elderly, children, unemployed and marginalized section of the society. भाई marginalized section यानी जिसको हम कह सकते हैं कि अलग सेक्शन, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये सब मार्जिनलाइज सेक्शन कहे जाते हैं. अभी कंट्री सोशलिस्ट है उसका मतलब क्या कि कंट्री का एम क्या है कि गरीब और अमीर के बीच में जो गैप है वो कंट्री मिटा दे, वेल्थ का वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करे और वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे सारे सिटीजन्स को. फिर वो एम्प्लॉयमेंट की हो या कोई चीज़ इस्तेमाल करने की हो. जैसे जो भी चीज़ें यहाँ जो भी जगह है वो सबके लिए ओपन है. इट इज़ नॉट सिक्योर फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल और एनी कास्ट. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एल्डरली, चिल्ड्रन एंड अनएम्प्लॉयड पीपल. सिक्योरिटी यानी क्या कि जैसे कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है. जो एल्डरली मतलब क्या, जो एजेड पीपल है उनके लिए रेलवे में जैसे आप देखेंगे तो टिकट्स की रेट्स में डिफरेंस होता है. ऐसे वो मार्जिनलाइज सेक्शन को, चिल्ड्रन को, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. इस तरह से वो अमीर और गरीब के बीच में और जो इनइक्वालिटी रेस ना हो उसका ध्यान रखती है. सेक्युलरिज्म रिफर्स टू नॉट बीइंग कनेक्टेड विथ religion और रिलीजियस मैटर. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि कहीं पर भी रिलीजन या किसी रिलीजियस से लेकर वो जुड़ा हुआ ना हो. हम कहते हैं कि कंट्री सेक्युलर है, मतलब क्या कि हर एक रिलीजन को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है. हर एक सिटीज़न को वो चाहे वो प्रोफेशन या जो चाहे वो धर्म वो चुन सकता है, अपना सकता है. और ये हमारी कंट्री ये भी देखती है, जब वो सेकुलर है मतलब वो देखती है कि कहीं पर लोगों के साथ भेदभाव ना हो रिलीजन के नाम पर. इट इज़ प्रोहिबिटेड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल ऑन रिलीजियस ग्राउंड. धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव ना हो. तो इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन, ये हमारे प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है. एंड अनदर पॉइंट मेंशनड इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स व्हाट. आप लोग 7th स्टैंडर्ड में
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ चुके हो। मतलब कि जो भी सिटीज़न की एज 18 है, वेदर ही इज़ ऑफ एनी कास्ट, एनी रिलीजन, ही इज़ एलिजिबल टू वोट। वो एडल्ट जो है वो सिटीज़न जो एडल्ट है वो वोट कर सकता है, विच इज़ मोर देन 18 ईयर। इसका मतलब क्या, हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक है, मीन्स वो जो चुनेगा, जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे, वो पर्सन आएगा कंट्री को गवर्न करने के लिए। पीपल हियर आर फ्री टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। Also, these representatives are accountable to the general masses for each of their action. Thus, the power remain in the hands of people of the country. Being a republic means we have adopted a system of electing our representative instead of being governed by a hereditary ruler. People जिसको इलेक्ट करेंगे वो गवर्नमेंट रूल करेगा, ठीक है। तो उसने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जिसने उनको चुना है वो कोई डाउट रेस करे या वो उनको कोई तकलीफ़ हो तो वो उनकी तकलीफ़ को सॉल्व करे या उनके उठाए गए सवाल के वो जवाब दे। इसका मतलब क्या है, जो पर्सन गवर्नमेंट में है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ आंसरेबल टू अ कॉमन पीपल, मीन्स कि पावर जो है वो कॉमन पीपल के हाथ में है, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी रिपब्लिक है कंट्री, जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है मतलब उसने खुद इलेक्ट किया है रिप्रेजेंटेटिव को। इसका मतलब कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट आएगी वो हेरिडिटरी रूलर नहीं होगी। हेरिडिटरी रूलर मतलब क्या, कि राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी रूलर। But this is not in the case of republic. So India is democratic republic country. So I am stopping over here. This I've taught you till democratic republic. In our next lecture we will begin with justice. So for today's homework you have to read this chapter with the help of the PDF file which I am sending you. Okay, till then take care, bye bye, see you.